Sanjay ji, over to you. Yeah. Thank you, Dr. Raman, and thank you, Dr. Jinesh, for your valuable thoughts on this change environment and various points which you touched upon, how to manage sleep and how to manage stress in the current scenario, and how you can still, how as an individual we can still take out time to manage stress as well as normalizing the sleep cycle. One question which has come from colleague, he has just sent me an SMS in the group, and he's asking that earlier there used to be the social mixing a norm. Today, the social distancing is the norm. So it has just changed the overall living direction of an individual. So, which is creating in terms of isolation, stress, not mixing with, meeting with relatives. In such scenario, what are the ways by which he can manage? Dr. Jinesh, or we can take it up. You want me to go ahead, Dr. Sharma? Please, Dr. Jinesh, you go ahead first, please. No worries, yeah. Sanjay ji, who is the person who has asked this question? This is our pharmaceutical colleague based it in Delhi. Raman. अच्छा, थैंक यू रमन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. सो आई गेस आपका सवाल ये है कि अभी जो पहले हम सोशल मिक्सिंग करते थे, अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो इसमें हाउ डू वी नाउ मैनेज दिस सिचुएशन, इजंट इट? जब हम बहुत आपको इसके ऊपर हम आई जस्ट वांट टू रिफ्लेक्ट विथ यू ऑल. प्रोबेबली इसके पहले जब हम सोशल मिक्सिंग कर रहे थे, तो मे बी वी वर डूइंग इट too much. Maybe we were doing it at the expense of our own support systems. Whether we were actually addressing our stresses or whether we were just going with the flow of the life. कि हम काम पे जा रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, फैमिली में मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की जो साइकोलॉजी है, अपनी जो ब्रेन है, अपना जो माइंड है, अपने मन को हम वापस रिफ्रेश कर पा रहे हैं कि नहीं, वी डोंट नो. इसलिए ये भी एक मुद्दा सोचने लायक है. और आजकल का जो सोशल डिस्टेंसिंग आ गया, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग आ गया, उसने शायद हो सकता है कि अपने हमारे ऊपर ये जो कवर थे, जो हम एक्चुअली उस कवर के अंदर ही अपने आप को चलाए जा रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि हाउ मच वी आर एक्चुअली रिकवरिंग अवर मेंटल हेल्थ या हमारी इमोशनल वेलबींग को, वो शायद वो चादर हट गई हो. ऐसे इस नजरिए से भी हम देख सकते हैं इस चीज को. इसलिए वी नीड टू फर्स्ट रियलाइज कि वेदर वी वर एक्चुअली recovering our emotional well-being on a daily basis before or not, or whether it is the lack of that recovery which is now getting exposed, which is now coming in our forefront, because those covers are now taken away, isliye probably we are finding this very big vacuum. If you would look around yourself, there are a lot of people who are actually managing the current physical distancing, the current lockdown situation, the current complete change in the social scenarios in a very well way as well. It's not that everybody is stressed. If you look at them, if you see how they are managing, that themselves will give you a very good idea of probably what is it that they are doing. See, अगर हम मोबाइल भी है तो उसको भी हमें रिचार्ज तो करना ही पड़ता है ना. ऐसे ही तो वो चलता नहीं, उसकी बैटरी को रिचार्ज तो करना पड़ता है ना. अब हमने अपने माइंड को कब लास्ट रिचार्ज किया था, ये जवाब आप खुद आप सोचिएगा. हमारे बचपन से ही वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिचार्जिंग थिंग्स विद इन अवर माइंड. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिनको गाने का शौक हो, बहुत सारे लोग हो जिनको शायद छोटी मोटी एक्टिंग करने का शौक हो, बहुत सारे लोग हो जिनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्टडीज करने का शौक हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको रीडिंग का शौक हो, जिनको राइटिंग का शौक हो, जिनको बहुत सारी चीज करने का शौक हो. अब यहाँ पे यू नीड टू रियलाइज मैं कौन से शौक की बात कर रहा हूँ. आर यू एबल टू हियर मी? देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग. Yeah, doctor, it's clear. See, there is something which is called passive kind of participation, and there is something which is called active participation. अगर आपके दिमाग में कोई सोच कॉन्स्टेंटली चल रही है और आपको लगा चलो सोच को दूर करने के लिए मैं टीवी को खोल देता हूँ, टीवी को ऑन कर देता हूँ, टीवी के सामने बैठ जाता हूँ,
तो आपको लग रहा है दैट इज एक्चुअली पैसिव पार्टिसिपेशन। वो क्या होगा, टीवी के अंदर से तो आएगी ही, लेकिन आपका दिमाग उसे शट नहीं होगा। आपकी आंखें टीवी देख रही होगी, लेकिन आपके मन के अंदर आपकी जो सोच है वो कॉन्स्टेंटली वो अपना चलचित्र दूसरा चालू करेगा। लेकिन अगर आपने उस वक्त आपने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली कोई चीज आपने चालू कर दी, जैसे आपने खुद बना के चलो मैं खुद लिखने बैठता हूँ, या कुछ ड्राइंग करने बैठता हूँ, या मैं कोई संगीत का रियाज करता हूँ, बहुत दिनों से मैंने ये चीज की नहीं थी, उस चीज के बारे में मैं पढ़ता हूँ, उसको जानता हूँ, उसके आगे बढ़ता हूँ। या कहीं मैं कोई अभी तो ऑब्वियसली घर के बाहर तो निकल नहीं सकते, लेकिन कोई वर्चुअल टूर करता हूँ, कुछ ऐसी कोई चीज करता हूँ। सो दैट इज बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। That is something which is going to refresh your mind. That is something which is going to rejuvenate you. You need to start doing those kind of activities in the current scenario where physically activities is not possible to do. आप ये जो सोशल मीडिया है, आप एक बात सोचिए कि आपका जो मन है और मन के अंदर जो विचार है, तो ये मन की खिड़की कहाँ पे है? आपकी आंख और आपके कान। These two are the roots through which thoughts are going inside your mind. आप घर के अंदर जितना कूड़ा इकट्ठा करेंगे उतना ही आपके घर में कूड़ा बढ़ेगा। आप अपने आंखों से और अपने कानों से जितना ज्यादा कूड़ा आप इकट्ठा करेंगे उतना ही आपके मन के अंदर थॉट्स भी बढ़ने वाले हैं। इसलिए यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ रेशनिंग वहां पे, जैसे रेशन के अंदर होता है ना, वैसे आपको खुद को एक रेशनिंग करना है। मैं कह नहीं रहा हूं कि आप कोरोना को भूल जाए, टीवी भी देखना बंद कर दीजिए, लेकिन 24 घंटे आप व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, टेलीविजन के अंदर एक ही चीज सुनते रहेंगे, एक ही कचरा भरते रहेंगे, तो वही होगा ना। You have to now keep an eye, keep a check on your mind and eyes कि अब मेरे मन के अंदर जो चीजें छा रही हैं उसमें से कितनी पॉजिटिव सकारात्मक चीजें हैं और कितनी नकारात्मक चीजें हैं। उसको आप अपने आप कंट्रोल करेंगे तो अपने आप आपका डस्टबिन जो भरेगा वो भी आपके कंट्रोल में ही रहेगा और उससे आप कंट्रोल करेंगे। इसी सोशल मीडिया को स्टार्ट यूजिंग इट पॉजिटिवली फॉर सम एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टार्ट डूइंग सम पॉजिटिव फन गेम्स विद द सोशल ग्रुप्स विद व्हिच यू आर इन्वॉल्व। आपको जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ बैठे बैठे दूसरों की बातें सुननी है। स्टार्ट क्रिएटिंग सम एक्टिविटीज विथ यू। जो लोग जिम जाते थे दे कैन स्टार्ट डूइंग सम वर्चुअल एक्सरसाइजेज एट होम। डॉक्टर शर्मा ने, रमन जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए। व्हाट ही एक्सप्लेन वाज कि जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ नेचुरल ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं, ऐसे एंडोर्फिन्स है, कॉर्टिजोन्स है, जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी होते हैं। अगर आप रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 5 times in a week, एटलीस्ट 25 to 30 minutes, तो अपने आप विद इन कपल ऑफ वीक्स यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इन योर इमोशनल हेल्थ एज वेल बिकॉज ऑफ अ साइंटिफिक रीजन। ये जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटीज है, दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम मेडिसिन। Even those people who are actually clinically suffering from depression, anxiety, we have seen that when they start exercising regularly, तब जो मेडिसिन का जो डोज है उसको काफी लो डोज में हम मैनेज कर पाते हैं। वाई? बिकॉज ये जो दूसरा जो नेचुरल उसको जो सोर्स मिल जा रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्टिंग इन कंजंक्शन विद द मेडिसिन व्हिच वी आर गिविंग। मतलब these are certain very basic things which you need to realize for yourself as an individual person कि मेरा ब्रेन रिचार्ज कैसे होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है और उस प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है। This is what I would like to add. Sharma ji, is there something else you want to add to this? I think that Mr. Chauhan, can I proceed? Yeah, please. Okay. Yes, Mr. Jinesh, Dr. Jinesh, thank you very much for that, for your input. मैं इसको थोड़ा और एक डिफरेंट पहलू से समझाना चाहूँगा। आपने बहुत सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी टच कर दिया है। देखिए, एक चीज़ होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ओके, जिसको कि CBT कहा जाता है। देखिए, हम सभी की लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं। सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? हमारी फैमिली हो सकती है, हमारा करियर हो सकता है, हमारे फाइनेंसेस हो सकते हैं, या हमारी हेल्थ हो सकती है। अगर इन 4 स्तंभों पर मेनली हमारी ज़िंदगी टिकी होती है, अगर इनमें से कुछ भी हिलने लगता है तो हमें एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आने लग जाते हैं, और अगर बार बार हम उसी थॉट्स को सोचते हैं तो वो कॉग्निटिव बायसेस टाइप के क्रिएट कर देते हैं, जो अनहेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग होता है। अब जब वो थॉट्स आने लगते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर इमोशंस पैदा करते हैं उससे, या हमें एंग्जाइटी होती है, या हम लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, और एक हमारा पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर बन जाता है। उससे बिहेवियर का बन जाता है कि हम लोगों से बात करनी बंद करते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड करने लग जाते हैं, अपने जो हॉबीज रहती हैं उनको छोड़ देते हैं, या फिर हम जो चीज़ें में पहले एंजॉय करते थे वो एंजॉय नहीं करते उन चीज़ों को। तो इंसान जो है एक विशियस सर्कल में पड़ जाता है। अब बेसिकली ये क्लिनिकल एविडेंस है इसका कि भाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, वो या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट
उसमें क्या होता है कि हमें ये पता है सिचुएशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे आज की सिचुएशन है, कोरोना पे हमारा कंट्रोल है नहीं है, हमें तो यही नहीं पता कि उसकी दवाई क्या है, किसी को नहीं पता। आज वैक्सीन नहीं है उसके पास में, जो भी ट्रीटमेंट आ रहा है वो सिम्टोमेटिक कर रहे हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, कुछ ट्रायल्स आए हैं जिन्होंने डिस्ट्रेस उसका उसका फिजिकल डिस्ट्रेस कैसे कम हो उसके बारे में वो चीज़ें आई हैं। दिन पर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें डिस्कार्ड की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सिचुएशंस पे हमारा हमेशा कंट्रोल नहीं रहता और हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल हो सकता है और हमारे बिहेवियर पे हमारा कंट्रोल हो सकता है। जब आपका जो क्वेश्चन था चौहान जी, जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था उनका भी नाम शायद रमन ही है, जी तो रमन जी, रमन शर्मा आपको एक आत्री जवाब देने चाहते हैं इस बारे में। तो बेसिकली अगर आप बात करें कि बिहेवियर जो हो गया, पहले हम सोशल मिक्सिंग की बात करते थे, अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। देखिए ये पर्टिकुलरली ये बिहेवियर सोशल मिक्सिंग जो है वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता था, डेफिनेटली ले जाता था। अब आज की कहानी में अगर हमारे पास में वो नहीं है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आम का महीना हमेशा तो रहता नहीं है, हमेशा तो आम मिलते नहीं है। आम हमें मई से लेकर मे बी जुलाई अगस्त तक मिलते हैं और उसके बाद तो हम बिना आम के कुछ ना कुछ फल फ्रूट खाते ही हैं या सब्जी खाते ही हैं। तो आज जरूरत इस चीज की है कि हम कुछ देर के लिए, अगर हम सोशल मिक्सिंग नहीं भी कर पा रहे हैं, या तो कोशिश कीजिए कि आप सोशल मिक्सिंग, इंटरनेट का यूज है, फोन का है, व्हाट्सएप का है, वीडियो कॉल्स का है, उसके थ्रू आप अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि ओ मैं तो मिल ही नहीं पा रहा हूँ अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वही वही थॉट अगर आपके दिमाग में चलता जाएगा और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो मान के रखिए कि आप एंग्जाइटी में या फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मेडिकेशन ही काम करे। बहुत सारी चीज़ों में आपकी आत्मशक्ति, आपका बिहेवियर पॉजिटिव और आपके पॉजिटिव थॉट्स काम करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप सोशल मिक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम बिता सकते हैं, उनको पेंटिंग, क्राफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा में एंगेज कर सकते हैं, उनको महापुरुषों की कहानियां सुना सकते हैं। हमारे देश में तो क्या क्या महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद जी महाराज, विवेकानंद जी हुए हैं हमारे यहाँ पर, भगत सिंह हुए हैं हमारे यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जी हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं। कितने कितने महापुरुष हैं जिनकी कहानियों से हम भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और हमारे बच्चे भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये टाइम है कि हम उनको एंगेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों में और अपना मन भी उनमें लगा सकते हैं। तो और म्यूजिक सुन सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, कॉमेडी मूवीज। जब हम छोटे थे, मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त भी इंग्लैंड में बैठा हुआ, अभिषेक अग्रवाल, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, मुझे सुन रहा है मेरे हिसाब से। तो हम जब कभी भी बोर हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे या फिर पढ़ाई से ऊब जाते थे, तो हम कभी कभी बंक मार के गोविंदा की पिक्चर देखने चले जाया करते थे। तो भाई कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए मिक्सिंग। आप सोशल डिस्टेंसिंग, आप मास्क पहनिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप लोगों के साथ में बात कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में आप देखिए, मैं अपने मोहल्ले में देख रहा हूँ कि मैं पहले मोहल्ले में अपने बगल वाले या अपने साइड वाले से बात नहीं करता था, लेकिन मिक्सअप हो गए हम लोग, कितने ज्यादा अपने मोहल्ले वालों के साथ में जुड़ गए इस ड्यूरेशन में। तो ये सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं लेके आया, कुछ पॉजिटिविटी भी लेके आया। तो मेरे हिसाब से आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई करके इस चीज से बेटर कोप अप कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा इस बात पे। थैंक यू। one more question which has come from Mr. Anand. रमन जी, Sorry. मैं संजय जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। रमन जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जी इज इट ओके? yeah please. हाँ, ये एक्चुअली रमन जी की बात सुनते सुनते मुझे आपके साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करना है। ये जो हमने जो देखा ना, सोशल, पहले हम काफी मिक्सिंग थे और अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग में आ गए हैं, एज इफ हम सोशल, हमने लॉस्ट किया है टच। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि शायद इन 3 महीने के लॉकडाउन में मैंने जितना सोशलाइजिंग किया है वो शायद जब लॉकडाउन नहीं था उससे कहीं ज्यादा मैंने एक्चुअली सोशलाइजिंग किया है। मैं सेमटेनियस में यूके में था और अभी इंडिया में मुझे 2 साल हुआ है, लेकिन कितने सारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ हार्डली बात करने का टाइम मिलता था। लेकिन अभी इस एक्चुअल लॉकडाउन के अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर, हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ का ग्रुप रिवाइव हो गया है। हम बहुत रेगुलरली एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बस्टर गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं।
अब आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ससुराल की तरफ से एक ग्रुप बन गया है, सोशल ग्रुप, मेरे ननिहाल की तरफ से सोशल ग्रुप बन गया है, मेरे पिताजी की फैमिली की तरफ से सोशल ग्रुप बन गया है, स्कूल फ्रेंड्स का सोशल ग्रुप बन गया है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हमारी सोसाइटी के कुछ लाइक माइंडेड पीपल का सोशल ग्रुप बन गया है, और उसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है कि भैया अब लग रहा है कि अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया सोशलाइजिंग, और इसमें से कुछ गड़बड़ भी हो जा रहा है। इनफैक्ट प्रोबेबली जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी का है, दैट एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए सही बात बताऊं तो ससुराल से जितना दूर रहे आदमी उतना ही अच्छा है ना। तो अच्छा है कि सोशल डिस्टेंसिंग में ससुराल का सारा काम खत्म हो जा रहा है, उनसे बगैर मिले, उसी के अंदर मीडिया के थ्रू हो जा रहा है। So look at the positive side of this social distancing. It is actually giving you new opportunities to socialize on a more meaningful way with a lot of people than you would have done physically with them. Okay, thank you, sir. Next question. There are three questions which have got very close similarities. Sanjay ji, can I just request you one thing? Yeah. ये जो the people who are asking questions, it might be helpful, if they just put the video on and they ask us directly, that was also one way of doing it. Sir, that can happen, but that may create little chaos because when everybody will start jumping. You can actually say Mr. X, Mr. X, or Mrs. So Y. I'm just naming the people in chat box. Also, if you click, you can see the name. There is a question which has come from Anand Agrawal and Mr. Yashwant. The question is almost similar, like kids at home are getting anxious and using a lot of screen, getting irritated, how to make them calm and giving ease to them. The similar question is how to deal with the teenage children suffering from stress due to uncertainty and lockdown. Can you please repeat your question once again? Sorry. These questions, both the questions are very close. So I am Anand and Yashwant. Mr. Yashwant has asked the question. So I am reading once again. Anand is asking, kids at home are getting anxious and using a lot of screen, getting irritated, how to make them calm and giving ease to them. The similar question is from Mr. Yashwant, how to deal with teenage children suffering from stress due to uncertainty and lockdown. Do you want me to say something, Sanjay ji? Because it's children and teenagers? Yeah, please. Yes. Yeah. Go on. See, this is Anand ji has asked this question, right? Yashwant ji. Yeah. So thank you, Anand ji and Yashwant ji, that you actually brought the young people in this talk show as well. The focusing on children and focusing on teenagers. Obviously teenagers are much more understanding in terms of what is happening in the current affairs. But sometimes we feel as if children are not understanding. I'm talking of very small children, 4 years, 5 years, 6 years of age. आपको लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनको क्या पता चले क्या हो रहा है आजू बाजू में। लेकिन आप अगर कोरोना वायरस से इतने एंशियस हैं, तो याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा इस बात का कि आपके घर में बहुत ही छोटे बच्चे भी हो, चाहे 1 साल का, 2 साल या 3 साल का भी हो, उसको भी इतनी सेंस हो रही है कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ बड़ा कुछ हुआ है। घर से बाहर हम निकल नहीं रहे हैं, घर के अंदर कॉन्स्टेंट रह रहे हैं, पापा काम पे नहीं जा रहे हैं, मम्मी कहीं नहीं जा रही हैं, हम कहीं पे नीचे घूमने नहीं जा रहे हैं, और हमारे पास तो फिर भी एक्सप्लेनेशन है इस बात का, बिकॉज वी आर अवेयर कि क्या चल रहा है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन इन द टेलीविजन एंड एवरीथिंग, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेडिकल लैंग्वेज एंड द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो चीज समझ में, उनके लिए एक तरह का एक अनजान भय है, एक अनजान एंग्जाइटी है। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं माँ बाप के कि बच्चों के बिहेवियर बहुत डिटोरेट कर गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है इतने छोटे बच्चों को। एंड द सेम थिंग गोज फॉर टीनेजर्स एज वेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे की जो एज है, उसकी एज अप्रोप्रिएट मैनर में यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। उनको डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे कोई चीज छुपाने की जरूरत भी नहीं है। उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि उनके मन की जो दुविधाएं हैं, जो अननोन का फियर, उनके अंदर जो एंग्जाइटी बैठी हुई है, उसके बारे में उनको थोड़ा सा शांति समझाया जाना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि हर एक बच्चा, जैसे हम हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारा रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म अलग अलग है, वैसे ही हर एक बच्चे का भी रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म अलग अलग है। अपने बच्चे के पोटेंशियल को पहचानिए, उस पोटेंशियल को यूज करिए कि आपका बच्चा उस पोटेंशियल के हिसाब से अपने ब्रेन को रिफ्रेश करे। अगर आपका बच्चा अभी इज डिस्प्लेइंग एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर्स, दैट इज क्लियरली द रिजल्ट
कि उसका ब्रेन अब कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, वो घर में बैठे बैठे उकता गया है और उसको रिचार्जिंग की जरूरत है। हर एक बच्चे का रिचार्जिंग मैकेनिज्म अलग अलग होगा, उसको आप यूज करें, यूज देम, उनको प्रोडक्टिव चीज में आप इन्वॉल्व होइए, उनके साथ में इन्वॉल्व होइए। जैसे रमन जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने बच्चों के साथ घर में गेम्स खेलिए, उनके साथ पेंटिंग करिए, हर चीज को एक नया गेम बना दीजिए। अगर आज डाइनिंग टेबल को सेट करना है तो आपका 7 साल का बच्चा भी कर सकता है, 8 साल का बच्चा भी आपको कर सकता है कि चलो तुम प्लेट्स लगाओ, उनको स्कोर दीजिए, उनको उसमें पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, उनके एक स्कोर कार्ड बनाए कि ग्रेजुअली उनका स्कोर कार्ड बढ़ रहा है। हर एक चीज को एक गेम और एक एक्टिविटी बना दीजिए जिससे कि उनके लिए ये चीज अच्छी रहे। It is very important to focus on those small things about teenagers and about children. किसी ने यहाँ पे शायद यशवंत जी ने शायद वो जो स्क्रीन का जो टाइम है उसके बारे में बोला। अब हम बच्चों की ऑनलाइन स्क्रीन से हम परेशान हो गए, राइट? हम अपने कितना टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने, कभी हमने इसका विश्लेषण किया है? हैव यू एवर एनालाइज दिस? अभी भी हम स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं। आप अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट पे और टेलीविजन पे हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स यू आर स्पेंडिंग डेली ऑन द स्क्रीन। तो इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द टीनेज पर्सन। उसके स्क्रीन के टाइम को लेकर इफ वी आर सो मच एंशियस देन वी हैव टू आल्सो मॉनिटर आवर स्क्रीन टाइम। Again, this screen time can be used positively as well. Try them, motivate them to use the screen time positively. I'm getting hundreds of teenagers and parents, coming and talking about कि मेरा बेटा पूरे टाइम 17 साल का बेटा है, अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहा है, कॉन्स्टेंट यूट्यूब के अंदर या तो वो एनिमे के अंदर या कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट देखता ही जा रहा है। He is not at all focusing on studies and everything. तो we have to now use the screen time in a positive manner as well, isn't it? और कुछ तो हो नहीं सकता, लेकिन इसी चीज को हम पॉजिटिवली यूज करिए कि वो उसके अंदर कुछ कोर्सेज करे, कुछ ऑनलाइन, या कुछ पॉजिटिवली कोई गेम्स खेले, आप उसके साथ गेम्स खेलने जाए उसके अंदर, सो दैट यू कैन यूज द स्क्रीन टाइम पॉजिटिवली। उनसे अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन कंप्लीटली छीन लेंगे तो भी क्या होने वाला है? जो 2 या 3 घंटे वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं वो आप छीन लेंगे तो वो 2-3 घंटे वापस वो फेसबुक में चले जाएंगे, ट्विटर में चले जाएंगे, और तो कुछ होगा नहीं, वो वैक्यूम उसी से भर जाएगा। इसलिए वी हैव टू पॉजिटिवली एंड क्रिएटिवली थिंक अबाउट वेज इन विच टू एंगेज दिस यंग पीपल। Anything you want to add, Raman ji? Yes, sir. Thank you very much for asking this question. I think it is a very important question. हम सभी इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ सभी के बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर में ही उनका ज़्यादातर टाइम बीत रहा है। तो बेसिकली मैं फिर अगेन मैं एविडेंस की बात करता हूँ, मैं बार बार एविडेंस पे आता हूँ, साइंटिफिक बात पे ज़्यादा पहले फोकस करूँगा कि एक पियाजेट थे साइंटिस्ट, उन्होंने साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बच्चे की दी थी, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है, 1-2 साल का रहता है, तो वो अपने सेंसेस से महसूस करता है कि हाँ ये मेरे ये एयर है, ये वाटर है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो सेंसरी मोटर स्टेज उसको कहा जाता है। फिर उसको पता लगने लगता है कि हाँ मेरी मदर अगर प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है, वो कहीं गुम नहीं गई है। तो फिर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद में 13-14 साल के बच्चे जो हैं, जब फिर वो अपने अपने पॉइंट्स बताने लगते हैं माँ बाप को कि देखो तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, उसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की स्टेज कहा जाता है। तो ये उन्होंने एक साइकोसोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी, उसके ऊपर एक नॉर्मल डेवलपमेंट जो बताया था कि बच्चे का इस हिसाब से होता है डिफरेंट स्टेजेस में। तो जैसे डॉक्टर जिनेश ने टच किया कि एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस और एज अप्रोप्रिएट आंसर्स उनको देना बहुत आवश्यक है। वहीं मैं बात करूंगा कि मेरे पास में जो केसेस बच्चों से रिलेटेड आए हैं, जब कभी भी आप ये देखें कि आपका बच्चा जो है या तो नींद में बड़बड़ाने लग गया, या नींद में टॉकिंग करने लग गया, या फिर नींद में एकदम से डरने लग गया है जो पहले नहीं हो रहा था, या फिर कई बच्चे बेड वेटिंग करने लग जाते हैं, कई लोग अंगूठा चूसने लग जा रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर पीरियड में, इसका मतलब एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टर्म रहती है रिग्रेशन, मतलब वो अपनी स्टेज से रिग्रेस होके एक पिछली स्टेज में चले गए। अगर ऐसा उनको हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई उनके साथ में तनाव चल रहा है। अब तनाव किस चीज़ का चल सकता है इस ड्यूरेशन में? तनाव 2 चीज़ों का चल सकता है। एक तो कोरोना का भय, जो कि शायद बहुत छोटे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन जो 13-14 साल वाले बच्चे हैं उनमें ये वाली एंग्जाइटी देखी जा रही है। और दूसरी चीज़ है लॉकडाउन से उनकी एक्टिविटीज़, क्योंकि स्कूल्स में आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे स्विमिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं, क्ले के साथ खेलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एक्टिविटीज़। अब उनकी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह उनके सामने आ चुका हुआ है। देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मैं ये भी प्रस्तुत करना चाहूँगा कि
जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से 25 से 50% मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बिफोर द एज ऑफ 20 डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है ये चीज़ को जानना कि हम वो चीज़ें ज़रूर मेक श्योर करें ताकि हमारे बच्चे किसी टाइप की फ्यूचर में एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इस टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ना फेस करें। उसके लिए बहुत आवश्यक क्या है, बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स जो हैं एक रोल मॉडल होते हैं, वो उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। मतलब अगर आप खुद ही एंग्जाइटी के साथ में बच्चों के और एक कोरोना ना हो जाए, इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, साथ वाली सविता बहन जी को हो गया, बगल वाली गीता बहन जी को हो गया, बगल वाले भाई साहब को हो गया, उधर दूसरे चौथे मोहल्ले में इनको हो गया, और आप खुद ही अगर डरते रहेंगे तो बच्चे सोचेंगे यही नॉर्मल बिहेवियर है। वो ये नहीं समझेंगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, वो इसी को नॉर्मल बिहेवियर मानेंगे, क्योंकि जैसे जो उनके पेरेंट्स करेंगे वही उसको नॉर्मल बिहेवियर लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ये जो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन जो है कोरोना का, ओवर इंफॉर्मेशन जो है, बम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन, उसको कम कीजिए, उसको ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए उनको बच्चों के साथ में, और उनको यही बताइए कि ये ट्रांजिएंट पीरियड के लिए है। जैसे हर एक चीज़ लाइफ में ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रहती है, समय है, ये समय के साथ में निकल जाएगा। एक साइंटिस्ट है सेलिग्मान, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, एक डॉग को रखा उन्होंने और एक प्लेटफॉर्म के आजू बाजू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगा दिया, और जैसे ही डॉग बाहर जाना चाहता था उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता था और वो एकदम से अंदर आके बैठ जाता था। फिर वो बाहर जाने की कोशिश करता था, उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता था, फिर वो अंदर आके बैठ जाता था। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का शॉक पेरिफेरल फील्ड से हटा दिया, वो डॉग ने बाहर जाना ही बंद कर दिया। इसको कहते हैं हेल्पलेसनेस, लर्नड हेल्पलेसनेस। उसने अपनी हेल्पलेसनेस को लर्न कर लिया, उसने कोशिश कर दी, बंद कर दी। तो बच्चों को कभी फील ना होने दें कि आप हेल्पलेस हैं, उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए कि बेटा कोई नहीं, ये एक ट्रांजिएंट पीरियड है, आपके पापा और दूसरे लोग इसका सामना कर रहे हैं, ये समय है, ये समय के हिसाब से निकल जाएगा, आपको हॉलीडेज मिले हुए हैं, आप अपने नई अपनी जो पहले पूरा काम करते होते थे आप वही काम कीजिए, और जो चीज़ें आप घर में कर सकते हैं वो कीजिए। और सर ने जैसे कि डॉक्टर दिनेश ने एक्सप्लेन किया कि उनको पॉइंट्स दीजिए उनके अचीवमेंट पे कि हाँ भाई आज तुमने इतने पॉइंट्स अर्न किए हैं, कल तुम इतने पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, उससे बच्चों का बिहेवियर इंप्रूव होता है। और ये कुछ तरीके हैं जो मेरी नज़र में ऐसे हैं। उनको एक्सरसाइज भी करवाइए, ठीक है, उनको प्राणायाम करवाइए, उनको ध्यान लगाने की टेक्निक सिखाइए, बहुत सारी चीज़ें जो एज अप्रोप्रिएट जो भी हो आप उनके हिसाब से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, doctor. No, it's a very There is one more. helpful thing that he has added. संजय जी, Sorry. संजय जी क्वेश्चन। There was एक मिनट में संजय, I need to add something. Yeah. हाँ जी, I think रमन जी ने एक बहुत ही important point हमें समझाया है, and this is actually research based as well. You know, obviously इंडिया के अंदर हम काफी रिसर्च तो हम कर नहीं पाते because of various reasons, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में लगभग 30-40 सालों से कांस्टेंट रिसर्च की एक ही एक फाइंडिंग बार बार आ रही है कि हम अब जितने भी हम मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी हम देख रहे हैं इन द जनरल पॉपुलेशन, इन द एडल्ट पीपल, उसमें से मोर देन 50% ऑफ द मेंटल हेल्थ, उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, वो 14 साल की पहले से ही चालू हो गए होते एज में, 14 साल की उम्र के पहले से चालू हो गए होते, लेकिन अभी पकड़े जाते हैं एडल्ट में। और 75%, 3-4% के सिम्टम्स 18 साल के पहले चालू हो गए होते, लेकिन पकड़े जाते हैं बहुत बाद में। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम शायद उसको काफी लेट पकड़ रहे हैं। जैसे रमन जी ने कहा 14 साल और 15 साल के अंदर नियरली 3/4 जितने अगर सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एडल्ट एज के अंदर हम उसको पकड़ रहे हैं? और ये बात एक्चुअली वेरी ट्रू है। आज की तारीख में भी जब मैं अपने क्लिनिक में बैठा रहता हूँ, या समझ लीजिए कोई 30 साल का नौजवान या कोई 30 साल की लेडी मेरे पास आ रही है और शी इज टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन या समथिंग, जब हम उनकी पूरी डिटेल में साइको सोशल हिस्ट्री लेके पूरा असेसमेंट करते हैं, तो इनवेरिएबली उसमें से 90% लोग कुछ ना कुछ लक्षण अपना बताते हैं जो उनको बचपन से हो रहे थे और जो अभी तक अवॉइड किए जा रहे थे। भले ही उस वक्त वो डिप्रेशन में नहीं थे, लेकिन उनके कुछ माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स, लक्षण उनके तब से चालू हो गए होते हैं। और यही हमें एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स ये रियलाइज करना है कि इन छोटे छोटे लक्षणों को हम अभी से उतना पनपने न दे, उनकी साइकोलॉजिकली उनको हम इतना स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाएं कि आगे जाके जब लाइफ के अंदर मेजर इश्यूज आए तब धड़ाम से वो डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में या सीवियर एंग्जाइटी में न गिर जाए। So I think this is a very important take home message. Thank you, Ramanji, you touched on this, and that is what I wanted to stress here as well. Thank you, Sanjay ji. Yeah, thank you, sir. Just quickly, there are
few more questions. I will request quickly if you can briefly take them as well. Sumati Vaswani is asking, college students exams are postponed for the college students. Future study schedules are disturbed and future opportunity is uncertain. How do we explain these things to them? And tests are also not happening. क्या मैं इस पे जा सकता हूँ पहले? Please, Sure. Raman, no, not an issue. हाँ, तो बेसिकली देखिए, जो मैंने पहले बात कही थी, कभी भी इंसान को इस टाइप की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई इस चीज़ का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं। जब प्रॉब्लम जब इस टाइप की हो जाती है कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, तब इंसान एक लर्न हेल्पलेसनेस में जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को ये समझाना बहुत आवश्यक है कि बेटा ये एक ट्रांजिएंट पीरियड है, ये समय है, और समय की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बुरा भी हो तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता और वो निकल जाता है। मेरे हिसाब से उनको ये बताना बहुत आवश्यक है। उनको कंटिन्यू मोटिवेट करते रहिए कि वो जो भी अपना होमवर्क है, जो भी उनका कोर्स वर्क है, वो जितना अपने आप से हो सकता है वो कर लें। जो भी चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है, वो उनसे ये चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ, उनका क्लासरूम में बैठ के पढ़ना, ये पॉसिबल, अगर आप बोले कि हाँ बेटा 3 से 6 महीने हो सकता है इस चीज़ को लगे, लेकिन ये टाइम है, इसका हम और अच्छे से क्या यूज़ कर सकते हैं वो उनको आप समझाइए, तो उनको एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि जब इंसान हेल्पलेस या होपलेस हो जाता है, तब उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हेल्पलेस ना फील करवाएं और होपलेस ना फील करवाएं, उन पे होप जगाते रहिए कि हाँ बेटा, वो कहते हैं ना, वो सुबह कभी तो आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि अपने मन में एक आस, एक पॉजिटिविटी बनाए रखना कि हाँ इस चीज़ से हम जीतेंगे, इस चीज़ का हम सोल्यूशन निकालेंगे। और देखिए, अगर देखिए तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की ट्रायल जो है 2nd स्टेज से 3rd स्टेज पे जाने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस चीज़ में, हम आगे बढ़े हैं इस चीज़ को लेकर। और ये चीज़ बच्चों को भी बताई जाए कि भाई आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बराबर वैसे ही हो जाएंगी। एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, जो आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं वो करिए, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर नहीं तो कोई टीचर जो है, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है या फिर कोई प्राइवेट क्लासेस ले रहा है, तो वो कर सकते हैं। और बहुत सारे NGOs हैं जो कि फ्री में भी पढ़ाते हैं। देखिए, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। घर में बैठे हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी 10 जगह भटकना पड़ता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, तपस्या करनी पड़ती है। तो एक एजुकेशन जो विद्या है, ये एक तपस्या है, इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आराम से बैठ के, घर में बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। You need to think positively and you need to act positively. That's what I wanted to say. That is actually the CBT is all about. Thank you. Okay. One question which is very different one. So I am taking little bit on priority. Hello? Sorry, I was Sanjay mute. Sorry, I was mute. The one question Yeah. I am taking little on priority because it is a little different. So I thought let me take this on priority. The person is Pradeep. He is working in pharma only, and he says I am working with pharma marketing, and as every day I go to field work. Yesterday I have gone for doctor call, and when I was waiting for doctor call in car parking, we were not allowed in the hospital. Same time, we have 2 dead bodies and both expired by COVID. We got so panic. How do we manage such anxiety? Please advise. डॉक्टर जिनेश, आप पहले जाना चाहेंगे कि मैं जाऊं? आई थिंक सॉरी, क्या आपने नाम बताया भाई साहब का जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा? मिस्टर प्रदीप. हाँ, प्रदीप जी, आई थिंक सी व्हाट यू आर experiencing, what you are facing is something which we have been talking over the last 1 hour anyway, कि COVID is creating a lot of anxiety in us. और उसी का एक दूसरा एग्जाम्पल दिया आपने कि कोविड सिचुएशन में अगेन वापस कैसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई है. This is bound to happen. What you have seen is a very traumatic thing. So that traumatic thing is bound to affect you. And the same principles which Dr. Raman Sharma has been saying, which I have been saying, the same principles apply to you, to be realistic, to manage your anxiety, to think about positive things, to be rational in terms of that, yes, it is a very unfortunate traumatic thing which you have seen, but does it mean that you have also got COVID?
the proper precautions you take. We are not talking about, this is not an unreasonable fear in you. आपको कोई भ्रम नहीं हो रहा है कि कोविड नाम का कोई प्राणी आ गया है या कोविड नाम की कोई सिचुएशन आ गई है. जो है रियलिस्टिक भय है, which is in everybody. उस रियलिस्टिक भय को एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में हमें सक्षमता, अपनी प्रोटेक्शन अपनी बढ़ानी, अपनी सेफ्टी मेजर्स बढ़ाने हैं. और अगर ना करे भगवान, अगर कोविड पॉजिटिव अगर हो भी जाए या वैसे लक्षण दिख भी रहे, तो उसको नॉर्मली उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उसको टैकल करना है. यही मेन चीज है जो आपकी एंजाइटी को आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी. टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड टू कीप योरसेल्फ सेफ इन दिस सिचुएशन एंड देन मूव अहेड. एनीथिंग रमन जी व्हिच यू वांट टू ऐड? जस्ट वन थिंग अगेन, मैं फिर साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करूंगा इस चीज की. बेसिकली इन साइकोलॉजी देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. अब देखिए, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो चीज पे होता है जो हमारे हाथ, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वो चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है. दुनिया में सिर्फ कोविड ही ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है. जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं शाहरुख खान से अभी मिल लूँ, ठीक है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है. हालांकि मेरी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है ऐसी, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. तो बेसिकली जो आप सिचुएशन फेस किए, प्रदीप जी ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा है, आई होप कि मैं उनका नाम सही दे रहा हूँ, इफ़ नॉट देन फॉरगिव मी फॉर दैट. बट यस, आपने बोला कि आप गए, आपको अंदर अलाउड नहीं था. देखिए, अंदर अलाउड इसलिए नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में. मैं भी सारे अपने जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कार पार्ट में मिल रहा हूँ. वो अलाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं. तो इसको एकदम से आप पॉजिटिव ले सकते हैं. ऐसा ना फील करें कि ये हॉस्पिटल जानबूझ के कुछ कर रहा है. हॉस्पिटल जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ताकि मिनिमम 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो पाए, इस वजह से ये चीज़ हो पा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप समझते भी होंगे. जस्ट मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, अगर बाय द वे किसी को नहीं पता हो इस चीज़ को. नंबर दूसरी चीज़ जो है, हम बस, मैं और आप बस इतना ही कर सकते, क्योंकि हम तो कभी कभी मैं इमरजेंसीज में जाता हूँ, कभी कभी मैं ICU वगैरह में जाता हूँ. मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये पेशेंट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन हाँ, जो मेरे हाथ में प्रोटेक्शन लेना, मास्क, शील्ड, डबल मास्क, डबल ग्लोविंग, शील्ड, सोशल डिस्टेंसिंग बना के बात करना, कभी कभी देखो हमारे प्रोफेशन में तो कभी कभी ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता. लेकिन हाँ, आप जो वही कर सकते हैं जो आपके हाथ में, दैट इज योर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में अगर आप सोचते जाएंगे तो आप एंग्जाइटी का ही शिकार बनेंगे. और अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन ने युद्ध के समय रणभूमि में उतर के उसका सामना किया, उसी से उसकी एंग्जाइटी गई है. तो ये ओवर द टाइम अगर आप इसके साथ में इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर अपने आप को रिलैक्स करना फील कर देंगे, तो एंग्जाइटी अपने आप चली जाएगी. क्योंकि एंग्जाइटी का तो कर्व ही ऐसा होता है कि वो आगे ऊपर तक बढ़ती है, ऐसे एक पर्टिकुलर स्टेज पे प्लेट्यू पे जाती है और अपने आप कम हो जाती है. हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसको बिल्कुल नीचे लाने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, समय है और समय बहुत बलवान होता है और समय निकल जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को अगर यूज़ करेंगे, तो हम इसका मेंटली, देखिए फिजिकली कोई भी इफेक्टेड हो सकता है, मैं भी इफेक्टेड हो सकता हूँ, शिवराज सिंह चौहान हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री इफेक्टेड हो गए, अमिताभ बच्चन इफेक्टेड हो गए, तो कोई भी इफेक्ट हो सकता है. उस इंसान के लिए अच्छी कामना करनी है कि वो जल्दी स्वस्थ हो, और सबके लिए अच्छा सोचना है. वो बोलते हैं ना कि बीमार से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बीमार की गलती नहीं है ये. उनको सहानुभूति दीजिए जितनी दे सकते हैं, और खुद भी पॉजिटिव रहिए. जो हमारे हाथ में हम उतना करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने का फायदा नहीं. बस यही मैं कहना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच. Sir, just संजय जी. yeah, I'll just ask last two questions, which you can take up is one by one, each one of you. Everything is happening. This is asked by Mr. Gurmeet Narang. He is asking, everything Okay. is happening on virtual platforms. We are moving away from real world. Are not we losing the benefits of human touch, emotional connect, and face-to-face talks with people? जिनेश जी, आप आज जाना चाहेंगे पहले इस बात पे, प्लीज कैरी ऑन. Sure, no then I worries. will answer the question. No worries. Mr. Gurmeet is a very good friend of mine, by the way. Oh, is he okay? Then let me tackle Dr. him. Gurmeet Narang. Yes, yeah. Let me tackle him. You won't. You will be too kind to him, isn't it? No, please. He's a very nice It's person. it's a very good question, but again, are we losing by losing this physical touch with the people around us?
what are we gaining and what are we losing? If suppose we don't do this physical distancing from people, then do you think we'll lose more or we'll be losing less? That's a question which we hardly have an answer to. We are just trying to keep safe in the current situation. So yes, philosophically these things are quite distressing, that we are losing physical touch, we are going into a virtual bubble nowadays. बट वी आर ऑल्सो बीइंग रियलिस्टिक इन द करंट सिचुएशन कि भाई जब एक इन्फेक्शन है जो एयर के अंदर फ्लो कर रहा है एरोजोल्स के हिसाब से, और हमें भगवान ने क्या हमें आंखें दी हैं, हमें किसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया नहीं आँख की जगह पे कि हम रास्ते में चलते चलते हम ये चीज़ की कंफर्मेशन कर ले कि भाई मेरे आजू बाजू में जो आर्टिकल्स है उसके अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं, या हवा के अंदर है कि नहीं. इसलिए वी आर जस्ट क्रिएटिंग दिस सिचुएशन ऑफ दिस वर्चुअल बबल, दिस फिजिकल डिस्टेंसिंग फ्रॉम द पीपल, और उसी को समझ के उसी को करके हमें चलना है. जैसे रमन जी ने कहा कि वी हैव टू बी पेशेंट, दिस इज ओनली अ टाइम बाउंड फैक्टर, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज, बट इट इज डेफिनेटली अ टाइम बाउंड फैक्टर. Gradually, within weeks, within months, things will become better, and we have actually seen that. We have moved from a complete lockdown into the unlock phase, so gradually things will get better. There are countries in the world who were in this situation a few months before us, and looking at their trajectory, we can see that yes, things gradually do move. So we just have to hope the best and we have to move ahead. That's all I want to say to this philosophical question. देखिए, मैंने क्वेश्चन का आंसर देना पहले इसलिए सही नहीं समझा क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि मैं डॉक्टर नारायण को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं चाहता था कि आप उनको पहले को आंसर दें. देखिए गुरमीत सर, डॉक्टर गुरमीत नारायण, ही इज अ PhD, ही इज एन इंजीनियर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज कॉल्ड एज अ हैप्पीनेस मैन इन इंदौर एज वेल. आपने बहुत ज़रूरी बात टच करी कि जो ह्यूमन टच था या फिर जो जनरली जो हम नेचर के साथ में टाइम बिताते थे, उस चीज़ में कमी आई है, और मैं मानता हूँ कि उस चीज़ में कमी आई है, ठीक है. लेकिन हाँ, अगर हम उस चीज़ को थोड़ा स्पिरिचुअली, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच इज़ इन इंडिया एंड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ अस. इवन रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट ने भी, रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट UK, जो कि सबसे बड़ी साइकेट्रिस्ट की, वन ऑफ द बिगेस्ट साइकेट्रिस्ट की हब माना जाता है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ और डॉक्टर शाह भी मेंबर हैं उसके. उसमें भी स्पिरिचुअलिटी इन साइकेट्री एक ब्रांच है जो कि अब रिकॉग्नाइज है, उसमें मेंबर्स हैं, मैं भी मेंबर हूँ उसका. वो एक ब्रांच है. ये देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हील. और हमारे देश में जहाँ गुरु नानक जी ने जन्म लिया, रामचंद्र जी ने जन्म लिया, जहाँ पर राम रहीम दोनों हर जगह से कुरान की आयतें जहाँ पर हैं, जहाँ पर हर एक रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को या फिर मेंटल डिफिकल्टीज को टैकल करना बताता है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. उन सभी धर्मों में ये बात करी गई है कि आप पेड़ पौधों से, जानवरों से प्यार कीजिए. मैं समझ सकता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग जानवरों से रखने की आवश्यकता है, लेकिन आप अपना ध्यान पेड़ पौधों पे लगा सकते हैं, गार्डनिंग में अपना ध्यान लगा सकते हैं. कुछ अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं तो वॉक कर सकते हैं. एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, नेचुरल केमिकल सिक्रीट होते हैं. तो हाँ, सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हम नेचुरली करते थे नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए, वो चीज़ें अभी भी पॉसिबल हो सकती हैं. थोड़ा कंसंट्रेशन उस पर थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं. जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम मिलने भी लग जाएंगे और एक दूसरे के साथ में जादू की जप्पियाँ भी पाने लग जाएंगे. ये मैं कहना चाहूँगा गुरमीत जी आपके बात पे. थैंक यू. I hope that answered your question. Okay. Thank you, Doctor. Thanks for valuable contribution. I'll just take this last question, which is asked by our colleague Anurag. And he says, as a professional, we are working with colleagues. And if there is already a person who is having psychotic illness such as panic attack or depression, and the situation is ours, now how to handle him? Which is further I did not get the last bit. अगर situation is ours मतलब उसको थोड़ा clarify. Current situation is as such is against. So if he is already suffering and having the psychotic illness such as panic attack or depression, and in this scenario, if we are asking him to perform or conduct, or asking him to adopt change, how to handle him? देखिए, Dr. Jinesh, can I go for this one first? Yeah. Sure. Be my guest. Okay. Be my guest. It's okay. Okay. So basically yes, yeah. तो आपका बहुत important question है. इस पे मैं ये बात कहना चाहूँगा
कि देखिए अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन जो आई है, जो मार्च के बाद से हमारे देश में देखने के लिए मिल रही है, हालांकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में ये दिसंबर से ही चालू हो गई थी और मे भी नवंबर से इसके केसेस आने चालू हो गए थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, हम जुलाई में आ गए, हम 5th मंथ में हैं अभी इसके साथ में। तो ये सिर्फ उन लोगों को ही इफेक्ट नहीं चाहिए जो नए केसेस हैं, जो ऑलरेडी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ग्रस्त थे, साइकोसिस से ग्रस्त थे, या फिर उनकी जो दवाइयाँ चल रही थी उनको भी इसने इफेक्ट किया है, उनसे इनकी सिचुएशंस थोड़ी सी वर्स हुई हैं। आपका क्वेश्चन मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि उनको कैसे हेल्प की जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जानकारी, मैंने हमेशा इस चीज़ का एडवोकेट रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए प्राणायाम को मैं बोलता हूँ, मैं एक्सरसाइज को बोलता हूँ, मैं म्यूजिक सुनने को बोलता हूँ, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स करने के लिए, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स में एंगेज करने के लिए बोलता हूँ, हॉबीज में एंगेज करने के लिए बोलता हूँ, महापुरुषों की किताबें पढ़ने के लिए बोलता हूँ, पॉजिटिव सोचने के लिए बोलता हूँ। लेकिन देखिए अगर किसी को केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है, और उसके सिम्टम्स सीवियर हैं या मॉडरेट हैं, तो वो सिर्फ इन चीज़ों से सही नहीं होता। अगर आपको दवाइयों की आवश्यकता है तो आप उस पेशेंट को एनकरेज कीजिए कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम से ले, क्योंकि दवाइयों से 80% लोग 3 से 6 महीने के बीच में सही हो जाते हैं और उनको वो प्रॉब्लम फिर आगे नहीं होती है। अगर हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो साइकोसिस में भी 2/3 लोग सही हो जाते हैं और उनको आगे दवाइयों की लाइफ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको एनकरेज कीजिए कि आप हाँ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिए। क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, इन सब के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आप उनको एनकरेज कीजिए और उनको हमेशा, भले आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनको फ़ोन पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी कलीग यहाँ इंदौर में इफेक्टेड हुए हैं, मेरे डॉक्टर्स दोस्त इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना की वजह से। मैंने उनको हमेशा, जिनको भी मैं जानता था या मेरे को पता लगा, तो मैंने उनको कॉल लगा के उनसे बात करी और उनको एक सपोर्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड करी, और कुछ लोगों को मेडिकेशन की आवश्यकता थी तो मेडिकेशंस भी दी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उनके सामने फिजिकली प्रेजेंट होना ही ज़रूरी है, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं। उनको हमेशा ये याद दिलाइए कि भाई तू ये याद कर कि जब तू ठीक हो जाएगा तो तू दूसरों की सेवा कैसे कर रहा होगा जो लोग इस चीज़ से ग्रस्त हैं। जब आप उनको ये पॉजिटिव थिंकिंग देंगे और ये एक विजन बना के चलेंगे तो फिर कमाल की पॉजिटिविटी वर्क करती है। देखिए हमेशा नहीं वर्क कर सकती, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइप ऑफ पेशेंट्स में आपके पॉजिटिव थॉट्स, आपका कॉन्शियस माइंड जो सोचता है जितना स्ट्रांग रहता है और आपका सबकॉन्शियस भी उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर आप में पॉजिटिविटी है तो आप अपने आप को क्या, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप पॉजिटिविटी से रहिए, किसी चीज़ से डरने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, केयरफुल रहने की आवश्यकता है, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, लेकिन जो भी इंसान ज़रूरत में है उसकी मदद की। थैंक यू वेरी मच। Okay. हाँ, आई वुड एग्री विथ रमन जी। एक्चुअली संजय जी का पिटारा ऐसा है ना कि जो भरता ही नहीं है। क्यों संजय जी, और 2 क्वेश्चन नहीं और एक सर, क्वेश्चन it's over now. No, it's I will, okay. Actually, I'm very glad because mental health is a subject in which people are actually willing to talk, and that is actually very rewarding and satisfying. correct. इसका बस शॉर्ट आंसर यही है कि those people who already, आपने जो बोला कि जो already have got psychiatric issues, they already have got disorders, please don't stop yourself from being seen by a psychiatrist, by a specialist who can then help you. Currently the new normal is teleconsultations. Psychiatry, mental health is a branch in which whenever you go to see a doctor, you will go in with your family, because family is very important as part of the assessment or even as part of the treatment program. एक कमरे के अंदर 3-4 लोग बैठे होंगे और काफी डिटेल्स में बातचीत होगी, बहुत सारे एरोजोल्स जनरेट होंगे। दिस इज नॉट अनदर ब्रांच कि आपका ब्लड प्रेशर देख लिया, आपसे हाँ हूँ कर लिया और 2-3 लफ्जों के अंदर सारी काम पतेगी। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी बातें होगी, बहुत सारे एरोजोल्स जनरेट होंगे। इसलिए द न्यू नॉर्म इज टू हैव दिस कंसल्टेशन थ्रू टेलीकंसल्टेशन। I agree it is not as good as in-person face-to-face consultations, but it is better than nothing. And they actually are providing as much good efficacy, nearly 80-90% kind of efficacy, like the in-person consultation. So please go and do that. All those people who are having actual mental health disorders, who think that the self therapy and the self help options are not working, they need to be seen.
by teleconsultation through by a psychiatrist, by a specialist who can do a proper assessment, who can then plan treatment program with you. Okay, so that's the take home message from my side. Yeah. Thank you, doctor. Thanks. I think I must take name of some of our colleague who have summarized most of the points which you have made. Mr. Yashwant Misra, he kept on summarizing various valuable thoughts in the comment column, which may be useful for the audience as well. So he kept on saying that be realistic, manage anxiety, be positive, reward and recognition, and explore new methodologies, control internal locus, then that of managing external locus. So there is a lot of positive points he has taken. He has also expressed a very gratitude and thanks from many of our colleagues who are participants in the audience, like Anurag, Anand, Ashwant. Everybody is saying thank you so much for simplifying the complex subject and making it so interesting for all of us. So thanks a lot, and I also take this opportunity to thank you, each one of you, to taking out almost 1 hour and being with us.